close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hello friends and Assalamualaikum. Welcome to my channel New IB Old Designing Developer. Like in the previous videos, we have just done many of the things using many different languages, and I hope you understand that. Like in the previous videos, we have built many of the projects using Python in artificial intelligence, and we have also built projects using data structure algorithm in Python. And I hope you understand that all projects which we have just created in the previous videos. So today in this video, I will be telling you that how we can just create an amazing project using blockchain, Solidity, and Ethereum. So this will be really amazing project which we are building today. And today I will be telling you that how you can build an amazing education application using this amazing blockchain Web3, and I will be also telling you how you can do Solidity Ethereum in that. So this will be really amazing and helpful video, because from this video you will be learning many of the libraries and languages which will be giving you help moving forward when you want to build these projects using these all languages. So just I hope you will be understanding this video. So if you understand this video from the start, and if you enjoyed this, remember to hit a like, and if you're new on the channel, hit the subscribe button. And after subscribing, the notification bell, so more people can learn and they can understand how we can build this project from the start using these all amazing languages. So just now we will be starting with our video, and now we'll be seeing that how we are just building this project here and what things we'll be including in this project from the start. तो जैसा मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि आज हम जो है एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो जो कि अमेजिंग जो है प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो ब्लॉकचेन और सॉलिडिटी पे हम क्रिएट करेंगे, और इसके साथ ही हम इथेरियम का भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक वेब3 हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, और ये एक रेस्टोरेंट एप्लीकेशन होगी जो कि हम आज वेब3 के थ्रू क्रिएट करेंगे, और इसमें हम ब्लॉकचेन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा अगर आपको जानना है कि हम इस तरह की एप्लीकेशन में वेब3 का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और इसको यूज करते हुए किस तरह हम डिफरेंट एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और देखते हैं किस तरह इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने अपनी लोकेशन डेस्कटॉप पे क्रिएट किया हुआ है। तो ये मेरा फोल्डर है, अगर मैं आपको दिखाऊँ डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, ओके डाउनलोड में आ जाऊंगा मैं। तो ये हमारा फोल्डर है, तो मैं इसको जो है डायरेक्टली यहाँ से कर लूंगा ओपन। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद इसमें मैंने बूटस्ट्रैप का नाम दिया, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करेंगे अगर इसलिए। तो मैं आ जाऊंगा अपनी मेन फाइल में, Ctrl+V प्रेस कर देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद अब जो है हमें जस्ट आ जाना है नीचे, और नीचे आने के बाद जस्ट मैं आ जाऊंगा लास्ट तक, मतलब जहाँ पे हमने जो है इसका फुटर टैग डाला है वहाँ पे आ जाना है हमें। तो जस्ट अब जो है हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है, या तो आप शिफ्ट और एरोस की इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली माउस के थ्रू। तो मेरा माउस थोड़ा वर्क नहीं कर रहा, इसलिए जो है मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी एरोस की का। तो जस्ट आपको यहाँ से इनको जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है।
तो जब ये पूरा सेलेक्ट हो जाए फिर आपको इसको जो है यहाँ तक रिमूव कर लेना है। तो लाइब्रेरीज हमारी यहाँ तक है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ तक कर लेता हूँ कॉपी और फिर इसको यहाँ रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद जैसे हमें आ जाना है एट द टॉप और यहाँ जैसे लिखा है बूटस्ट्रैप रेस्टोरेंट टेम्पलेट। अब मैं इसको मिटा के यहाँ लिख दूंगा जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे रेस्टोरेंट वेब3। इस तरह मैंने एक टाइटल दे दिया, सेव करना है। और यहाँ पे आप ब्लॉकचेन भी लिखते हैं, वैसे टाइटल पूरा आएगा नहीं लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि हमने इसमें ब्लॉकचेन का भी इस्तेमाल किया। अब जो है हमें जस्ट इसमें से गैप देते हैं ताकि नीचे तक थोड़ी स्पेसिंग मिल जाए। अब आप देख सकते हैं हमें स्पेसिंग मिल गई है एंड तक। थोड़ा जूम भी कर लेते हैं ताकि मैं आपको सारे कोड शो करा सकूं। फिर इसको मैं अपने डिफॉल्ट ब्राउजर में गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी फाइल आ गई और ये हमारा ब्राउजर आ चुका है। फिर इसको मैं जस्ट डबल क्लिक करके यहाँ ओपन कर लेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है हमें जस्ट वेब3 मतलब रेस्टोरेंट ऐप वेब3 और ब्लॉकचेन लिखा शो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है हमने अभी इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह नहीं डाला है। अब मैं जो है यहाँ से अपना आ जाता हूँ अपने बॉडी टैग के अंदर। ये आपको आके सारे कोड्स का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये हमारा मेन टैग होता है जिसमें हम अपने सारे कोड्स लिखते हैं, चाहे वो नेक्स्ट.जेएस में हो या रिएक्ट या HTML CSS। तो हमें जो है आ जाना जस्ट इसी टैग के अंदर। तो जस्ट अब यहाँ पे मैं एक डिफ क्लास डाल दूंगा जो कि कंटेनर की हो जाएगी और यहाँ लिखूंगा मैं कंटेनर एक्सेप्शन और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा BG वाइड। इस तरह BG वाइड लिखने के बाद जस्ट स्पीड है 0 हो जाएगा इधर। और अब जो है हम यहाँ पे आ जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर वापस। अब जो है अब आप देखेंगे हमने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह कर लिया। तो अब जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर को। अब इस तरह ओपन करने के बाद अब जो है हमें आ जाना है नीचे। यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं डिफ के साथ जो कि स्पिनर की हो जाएगी और यहाँ क्लास भी दे देनी है जो कि शो लिख दूंगा मैं और शो के साथ BG वाइड। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा पोजीशन जो कि फिक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसलेट डैश मिडल और यहाँ पे मैं लिखूंगा W100 मतलब विड्थ 100। फिर उसके बाद BH 100 लिख देंगे इधर और टॉप 50 हो जाएगा। फिर यहाँ मैं लिखूंगा स्टार्ट जो कि 50 डी ब्लैक्स और यहाँ लिखेंगे अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर। फिर यहाँ हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट जो कि सेंटर। ये लिखने के बाद जस्ट अब नीचे आ जाना है, यहाँ लिखना है डिफ क्लास और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पिनर बॉर्डर। यहाँ लिखना है टेक्स्ट प्राइमरी इस तरह करके और यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा स्टाइल विड्थ जो कि 3REF हो जाएगी और यहाँ पे इसके साथ हाइट भी मेंशन कर देते हैं जो कि हो जाएगी 3REF। ये लिखने के बाद जस्ट आ रहे इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे रोल स्टेटस। फिर उसके बाद जस्ट स्पेन टैग डालना है इसके नीचे और फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद जस्ट इधर मैं क्लास देखूंगा SR ओनली इस तरह करके। फिर सेंटर में आके यहाँ लोडिंग का टैग डाल देते हैं और इसमें मैं 3 डॉट्स डाल दूंगा ताकि हमें हमारी लोडिंग का जो ऑप्शन है वो शो हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं रिलोड कर दूँ तो इधर हमें लोडिंग का ऑप्शन शो हो रहा है जिसमें यूजर की लोडिंग भी हमें शो होती हुई नजर आती है। यहाँ पे मैं कंटेनर एक्सेल डालता हूँ। फिर यहाँ पोजीशन रिलेटिव हो जाएगी और P-0 मतलब पैडिंग 0। अब नेफ क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ मैं एक नेफ की क्लास डालूंगा जो कि हो जाएगी नेफ बार। यहाँ नेफ बार हो जाएगी और यहाँ एक्सपेंड LG। ये लिखने के बाद जस्ट नेफ बार डार्क लिख देंगे। फिर उसके बाद BG डार्क हो जाएगा मतलब बैकग्राउंड भी डार्क PX4 PXLG और यहाँ लिख देंगे 5 PY3। फिर उसके बाद PYLG 0 ये हो गया। फिर नीचे आना है A टैग HBM empty रहेगा सिर्फ यहाँ नेफ बार ब्रांड आ जाएगा और यहाँ P टैग 0। फिर नीचे आना है H1 और यहाँ लिखेंगे क्लास टेक्स्ट प्राइमरी और फिर उसके बाद यहाँ लिखना है M0। फिर आई टैग डालना है क्लास आ गई इधर जो कि F यूटेंसिल्स तो मैं इधर लिखूंगा यूटेंसिल्स इस तरह और फिर LE3। फिर उसके बाद जस्ट हमें जो है अब आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे लिखूंगा रेस्टोरेंट इस तरह करके लिखते हैं रेस्टोरेंट लिखते डायरेक्टली रिलोड। तो आप देख सकते हैं लोगो शो हो चुका है रेस्टोरेंट का। तो अब जो है मैंने इसमें डिफरेंट नाम यूज किया। अगर आप चाहें तो और भी डिफरेंट नेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है हमें शो हो के आपने ही क्रिएट किया। क्लोन टाइप जब हम चीज क्रिएट करते हैं तो हम नेटफ्लिक्स का नाम बदल के नेटफ्लिक्स कर देते हैं या कुछ और इस तरह करके। तो इसी तरह आप इसमें भी यही चीज कर सकते हैं कि डिफरेंट नेम्स से आप जो है यहाँ पे लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब A टैग के नीचे आके यहाँ एक बटन क्रिएट करूंगा जिसमें हम क्लास दे देंगे नेफ बार टॉपलर की। तो स्पेलिंग मिस्टेक का आपको खास ख्याल रखना है क्योंकि अगर किसी भी क्लास में आपकी छोटी सी भी मिस्टेक हुई किसी भी अल्फाबेट की तो फिर उसमें जो है आपको एक वो इफेक्ट शो नहीं होगा जो कि आप अपनी क्लास में डालना चाह रहे हैं। फिर इसमें मैं टाइप दे दूंगा बटन डेटा BS टॉगल इज इक्वल्स टू कोलैप्स और फिर उसके बाद जस्ट इधर लिखते डेटा BS टारगेट। मैं लिखूंगा डेटा BS टारगेट इज इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे नेफ बार कोलैप्स। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है मैं आ जाना है नीचे स्पेन टैग और यहाँ पे मैं क्लास लिख दूंगा
क्लास हो जाएगी एफ ए बार्स, इस तरह लिख दिया। फिर उसके बाद अब बटन टैग के नीचे आना है क्लोज बटन टैग के, यहाँ कोलैप्स लिखना है, नैप बार हो जाएगा, फिर इसमें कोलैप्स लिख देना। उसके बाद यहाँ आईडी लिखते हैं नैप बार कोलैप्स। फिर अब जो है जस्ट अब यहाँ पे डिफ डालना है, यहाँ क्लास दे देंगे जो कि नैप बार नैप लिख देंगे इस तरह। फिर उसके बाद MS ऑटो और यहाँ पे लिख दूंगा PY0, फिर PE और PE में 4 लिख दूंगा। फिर उसके बाद आना है नीचे A टैग और यहाँ पे मैं नेक्स्ट की फाइल डाल दूंगा। फिर यहाँ क्लास दे देंगे नैप आइटम इस तरह, और यहाँ नैप लिंक, और यहाँ हो जाएगा सेंटर में आके जब होम लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है A टैग में मैं लिखूंगा अबाउट फाइल, और फिर यहाँ लिख देंगे क्लास में मैं लिखूंगा नैप आइटम और यहाँ लिख देंगे नैप लिंक इस तरह। फिर यहाँ मैं अबाउट लिखूंगा। उसके बाद आने नीचे और यहाँ लिखेंगे सर्विस, और फिर उसके बाद क्लास और यहाँ लिखेंगे नैप आइटम नैप लिंक। तो मैं इधर से डैश डालूंगा पहले, उसके बाद आइटम नैप लिंक, और फिर यहाँ पे जस्ट आपको नैप लिंक डालना है। ऊपर सबसे टॉप पे हमने से जो है एक्टिव डालिए, क्योंकि वो हमारा जो है पहला नैप बार मेन्यू है इसलिए। फिर यहाँ मेन्यू का टैग डालना है, फिर इसमें भी सेम एज क्लास नैप आइटम और नैप लिंक, जस्ट इधर हो जाएगा मेन्यू। सेव करना है इसको। फिर उसके बाद आने इसी के नीचे डिफ क्लास क्रिएट कर देनी है नैप आइटम ड्रॉप डाउन। अगर आप ड्रॉप डाउन डालना चाहे तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, वो भी जो है आप पे डिपेंड है, ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैं नैप लिंक की क्लास दे दूंगा। फिर यहाँ लिखेंगे ड्रॉप डाउन टॉगल, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा BS टॉगल, इस तरह लिखना है इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा ड्रॉप डाउन। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा पेजेस। उसके बाद जस्ट आ रहे हैं नीचे, यहाँ पे लिखेंगे डिफ क्लास ड्रॉप डाउन और यहाँ लिखेंगे मेन्यू M0। फिर नीचे आ रहा है उसके बाद A टैग, अब यहाँ बुकिंग की फाइल दे देंगे और यहाँ मैं क्लास दे दूंगा ड्रॉप डाउन और डैश आइटम इस तरह, और सेंटर में हम लिख देंगे बुकिंग। ये लिखने के बाद जस्ट ये ड्रॉप डाउन के मेन्यूज है जो कि मैं डाल रहा हूँ अपनी फाइल में। फिर इसमें भी क्लास देंगे ड्रॉप डाउन आइटम की, सेंटर में जस्ट मैं लिखूंगा आवर टीम। ये सेकंड मेन्यू है जो कि हम अपनी ड्रॉप डाउन में डालेंगे। फिर यहाँ टेस्टिमोनियल डाल देंगे। अब इस यहाँ पे क्लास दे देंगे ड्रॉप डाउन आइटम, तो मैं इधर से आइटम डाल दूंगा। फिर इसमें यहाँ लिखेंगे टेस्टिमोनियल सेव, और फिर उसके बाद A टैग डालना है, यहाँ कॉन्टैक्ट फाइल दे देंगे। फिर उसके बाद क्लास नैप आइटम और यहाँ नैप लिंक देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट, सेव करना है इसको, और सेव करने के बाद जस्ट अब नीचे आना है A टैग और यहाँ पे क्लास दे देनी है H में एम्प्टी रहेगा, यहाँ प्राइमरी PY और यहाँ टू देना है PX4, और यहाँ मैं लिखूंगा सेंटर में बुक टेबल इस तरह। ये लिखने के बाद डायरेक्टली सेव करना है इधर, और यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ में नैप बार मेन्यू शो हो गया, होम अबाउट सर्विस मेन्यू पेजेस, जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी शो हो गया, बुकिंग आवर टीम और टेस्टिमोनियल जो कि हमने इधर क्रिएट किया। कॉन्टैक्ट की बटन भी आ गई, मतलब कॉन्टैक्ट का सेक्शन और बुक टेबल की बटन जो कि हमने अभी VDN के थ्रू क्रिएट किया। तो इस तरह आप जो है कर सकते हैं। अभी ये नैप बार हमारा जो है क्रिएट हो चुका है, जो कि हमें रिस्पॉन्सिव और PC या लैपटॉप में भी सेम नजर आएगा। तो लेकिन मोबाइल में जस्ट डिफरेंस ये होगा कि हमें हैमबर्गर के साथ शो होगा, क्योंकि मोबाइल छोटी डिवाइस होती है तो उसमें एक लाइन में पूरी जो है नैप बार मेन्यूज आपको शो नहीं हो पाएंगे। लेकिन जस्ट यही चेंज होता है और हर वेबसाइट या एप्लीकेशन में यही चेंज मिलता है। लेकिन ब्लॉकचेन में भी हम सेम चीज यहीं पे जो है रिपीट करते हैं। तो इधर मैंने बुक टेबल की इधर क्लास दे दी है। उसके बाद मैं नैप टैग के नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे एक और कंटेनर क्रिएट करेंगे XXL के साथ, PY5 हो जाएगा जिसका BG डार्क रहेगा, और यहाँ हीरो हेडर दे देंगे। इसमें हीरो हेडर में मैं MP5 दे दूंगा। फिर उसके बाद डिफ क्लास कंटेनर, और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे MY5, फिर उसके बाद PY5, फिर उसके बाद नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास रो। फिर यहाँ मैं लिखूंगा अलाइन आइटम्स टू सेंटर लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे G5। उसके बाद आना है नीचे, यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास कॉल LG6, यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा टेक्स्ट LG स्टार। फिर उसके बाद आना है नीचे H1 में क्लास दे देंगे जो कि डिस्प्ले और 3। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट वाइट और एनिमेटेड में मैं लिखूंगा स्लाइड इन लेफ्ट। ये लिखने के बाद जस्ट अब हमें इधर आना है, यहाँ मैं लिखूंगा एंजॉय आवर VR टैग, बैक स्पेस दे देते ताकि हमारी स्पेसिंग जो है इधर से थोड़ी जॉइन हो जाए। यहाँ लिखेंगे डिलीशियस, और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे सेव। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आने P टैग, यहाँ क्लास दे देंगे टेक्स्ट वाइट एनिमेटेड, और यहाँ मैं लिखूंगा स्लाइड इन लेफ्ट। फिर अब जो है MD4 दे देंगे और PV2 यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ मैं लिखूंगा लॉरेन का टैग जो कि इधर हमने डाल दिया। A टैग यहाँ क्लास दे देंगे जो कि BTN प्राइमरी, और फिर उसके बाद जो है आप
बेसिकली अब हमें आ जाएगा आगे PYSM3 हो जाएगा यहाँ PXSM5 फिर NE3 फिर एनिमेटेड और स्लाइड एंड लेफ्ट। तो इधर हमने लिख दिया स्लाइड एंड लेफ्ट। सेंटर में आके इधर हम लिख देंगे बुक आर्ट हो गया सेम। और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा डिफ क्लास जो कि हो जाएगी कॉल LG6। फिर उसके बाद टेक्स्ट सेंटर और फिर यहाँ पे लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें इधर लिखना है टेक्स्ट LG एंड ओवरफ्लो और ओवरफ्लो हो जाएगा हिडन। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है यहाँ पे लिखेंगे इमेज सोर्स को रिमूव करना है इसकी जगह क्लास दे देंगे जो कि इमेज कोई। फिर अब जो है यहाँ सोर्स लिख देंगे इमेज स्लैश और यहाँ लिखेंगे hero.png सेव करना है इसको। और फिर उसके बाद जो है जो हमने डाले डिप्स तो हमने 5 डिप्स डाले इसके बाद तो हमें 5 डिप्स के नीचे आ जाएगा। तो ये हमने जो है 5 डिप्स डाले। फिर उसके बाद जो है नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा कंटेनर और XXL PY5। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास कंटेनर। फिर अब जो है नीचे आ रहा है यहाँ पे डिफ क्लास और यहाँ पे हो जाएगा रो G5। फिर उसके बाद जो है या तो आप फिर यहाँ लिखते हैं रो G4 इस तरह करके। फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास कॉल LG3 फिर इसमें कॉल SM6। फिर अब जो है वाव फेड है और ये लिखने के बाद जस्ट अब यहाँ लिखेंगे डेटा वाव डिले। अब डेटा वाव डिले में 0.1s में सेट कर दूंगा। यहाँ पे डिफ क्लास देते हैं सर्विस आइटम और यहाँ लिखते हैं राउंडेड PT3। फिर उसके बाद नीचे आना है और यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास P4। फिर यहाँ पे लिखेंगे आइटम यहाँ मैं क्लास लिखूंगा FA3x और यहाँ लिखेंगे FA यूजर गाय। फिर इसमें मैं लिखूंगा टेक्स्ट प्राइमरी और यहाँ पे लिखेंगे MG4। फिर ये लिखने के बाद जस्ट H5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे मास्टर स्टेप्स इस तरह करके। फिर अब जो है आ जाना है नीचे यहीं पे और यहाँ लॉरेन का टैग डाल देंगे एक पैराग्राफ डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक और क्लास देंगे डिफ क्लास कॉल LG और यहाँ लिखेंगे 3 फिर कॉल SM हो जाएगा इधर 6। फिर उसके बाद वाव फेड इन अप। ये लिखने के बाद जस्ट यहाँ लिखेंगे डेटा वाव डिले इस बार जो कि हो जाएगा 0.3s। अब जो है हमें आ जाए नीचे यहाँ पे डिफ क्लास सर्विस का टैग डालना है और आइटम राउंडेड और यहाँ हो जाएगा PT3। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास वापस क्रिएट कर देनी है जो P4 हो जाएगी इस तरह और आइटम फिर इसमें FA3x और FA utensils। फिर यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट प्राइमरी और टेक्स्ट प्राइमरी में जो है मैं यहाँ सेट कर दूंगा MB4। तो ये हमने दे दिया MB4। फिर H5 का टैग आ गया यहाँ लिख देंगे जस्ट डायरेक्टली क्वालिटी फूड मैं इधर लिखूंगा क्वालिटी फूड कुछ इस तरह। फिर H5 के नीचे आना है P टैग लॉरेन का टैग इधर भी दे देना है। फिर उसके बाद जो है डायरेक्टली अब जो 3 डिप्स हमने डाले हैं उसके नीचे आ जाना है फिर से और यहाँ एक डिप और क्रिएट करना है क्लास के साथ कॉल LG3 कॉल SM और यहाँ 6 डालेंगे वाव फेड इन अप ये लिख दिया। फिर उसके बाद डेटा वाव डिले यहाँ लिखेंगे 0.5s। फिर उसके बाद आना है नीचे और यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास सर्विस आइटम और यहाँ मैं लिखूंगा राउंडेड PT3। फिर उसके बाद नीचे आना है डिफ क्लास P4। फिर उसके बाद आना है नीचे आइटम क्लास FA3x या लिखते हैं FA3x FA कार्ड प्लस और फिर उसके बाद जो है जिसका जो है यहाँ लिखना है टेक्स्ट प्राइमरी। फिर अब जो है MB4 लिखना है सेव करना है इसको और फिर उसके बाद नीचे आना है H5 यहाँ लिखते हैं ऑनलाइन ऑर्डर। फिर नीचे आना है यहाँ लिखेंगे ठीक है ऑर्डर लिखूंगा। फिर उसके बाद नीचे आना है और यहाँ मैं लिखूंगा डिफ क्लास और यहाँ पे लिखेंगे कॉल LG3 कॉल SM6। फिर वाव फेड इन अप इधर से लिखता हूँ फेड इन अप। फिर उसके बाद डेटा वाव डिले और यहाँ लिखेंगे 0.7s डिफ क्लास सर्विस आइटम और फिर यहाँ पे राउंडेड और राउंडेड में मैं इधर लिखूंगा PT3। फिर उसके बाद नीचे आना है यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास जो कि हो जाएगा P4। फिर उसके बाद आई टैग और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा FA3x। फिर उसके बाद FA हेडसेट। फिर यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट प्राइमरी। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे MB4। ये लिखने के बाद डायरेक्टली अब जहाँ पे हमने आई टैग डाला है क्लोज वाला उसके नीचे हमें डायरेक्टली आ जाना है। यहाँ पे H5 टैग क्रिएट करना है जिसमें मैं लिखूंगा 24/7 सर्विस और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे है और लॉरेन का टैग दे देना सेव करना है इधर से और यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें शो हो गया एंजॉय अवर डिलीशियस मील पैराग्राफ बटन आ गई और एक इमेज जो कि हमें घूमती हुई नजर आ रही है टोटली अमेजिंग। फिर यहाँ पे मास्टर शेफ्स क्वालिटी फूड और
ऑनलाइन ऑर्डर, 24 आवर सर्विस के कुछ मेन्यू शो हो रहे हैं जिसमें हमें एक ब्यूटीफुल येलो शावर इफेक्ट मिल रहा है इतना बैक जो कि टोटली अमेजिंग लग रहा है और हमारे टेक्स्ट जो है वो वाइट में चेंज हो रहे हैं जब मैं इन पे हवर करता हूँ। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट है जो कि मैंने पुट किया है इधर यूज़ करते हुए ब्लॉकचेन को। तो अब जो है हमें जस्ट ये करना है कि इसके बाद हमने जो डाले हैं डिप्स, जितने भी डाले, जैसे हमने जो है अभी 6 डिप्स का इस्तेमाल किया था, तो हमें उन्हीं 6 डिप्स के आ जाना है नीचे और फिर यहाँ पे अबाउट सेक्शन का कंटेनर क्रिएट कर देना है। तो मैं इसको नाम दे दूंगा कंटेनर एक्सएक्सएल, जैसे हमने ऊपर दिया था py5 हो जाएगा और यहाँ पे डिफ क्लास कंटेनर हो जाएगी फिर से। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ क्लास रो g5 अलाइन आइटम जो कि सेंटर। फिर अब जो है डिफ क्लास और क्या लिखेंगे कॉल lg6 और फिर इसके बाद जस्ट नीचे आ रहा है यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ क्लास और यहाँ लिखेंगे रो g3। फिर उसके बाद नीचे आना है यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास कॉल 6 और फिर यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट स्टार्ट। तो अब जो है यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट स्टार्ट। फिर उसके बाद इमेज और फिर इधर मैं क्लास लिखूंगा जो कि इमेज फ्लूइड लिख देंगे और यहाँ मैं लिखूंगा राउंडेड और फिर w100 और यहाँ मैं वाव लिखूंगा और यहाँ जूम पे ये लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा डेटा वाव डिले और यहाँ लिखेंगे 0.1s और फिर उसके बाद सोर्स यहाँ मैं लिखूंगा इमेज जो कि अबाउट 1.jpg। फिर उसके बाद नीचे आ रहे और यहाँ पे जो है मैं एक डिफ क्लास दे दूंगा जो कि कॉल 6 हो जाएगा। फिर उसमें टेक्स्ट स्टार्ट। फिर अब जो है नीचे आ रहे हैं यहाँ लिखेंगे इमेज टैग, सोर्स की जगह क्लास दे देंगे जो कि इमेज फ्लूइड। फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे राउंडेड w-75 और फिर उसके बाद वाव जूम इन ये लिख दिया। फिर उसके बाद डेटा वाव डिले फिर यहाँ लिखेंगे 0.3s फिर सोर्स टैग इमेज स्लैश और यहाँ लिखेंगे अबाउट टू। सेव करना है इसको और यहाँ पे सेव करने के बाद जस्ट अब जो है यहाँ पे अपने सोर्स डाला है इसकी जगह यहाँ मैं स्टाइल दे दूंगा और अब जो है यहाँ स्टाइल में लिखेंगे मार्जिन टॉप जो कि हो जाएगा 25%। फिर उसके बाद जो है जस्ट अब हमें ये करना है कि अब जो हमने डिफ डाला है उसके नीचे आना क्रिएट क्लास कर देनी है कॉल 6 और फिर इसमें लिखते हैं टैग सेट। फिर अब जो है यहाँ पे अब नीचे आना है इमेज टैग, सोर्स की जगह क्लास दे देते हैं जो कि हो जाएगी इमेज फ्लूइड और यहाँ लिखेंगे राउंडेड w-75 वाव जूम इन। फिर यहाँ लिखते हैं डेटा वाव डिले और यहाँ लिखेंगे 0.5s और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट सोर्स का टैग डाल देना है इधर यहाँ लिखेंगे मेक स्लैश अबाउट 3 ये लिख दिया। फिर उसके बाद जो है ये लिखने के बाद हमें नीचे आना है यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ कॉल 6 फिर इसमें टेक्स्ट ऐड। फिर अब जो है नीचे आना है यहाँ पे लिखेंगे इमेज फिर सोर्स की जगह आ जाएगी क्लास इधर जो कि हो जाएगी इमेज फ्लूइड। फिर यहाँ लिखेंगे राउंडेड और फिर अब जो है w100 वाव जूम इन ये लिख दिया। फिर उसके बाद जो है अब हमें आ जाना आगे इस तरह। फिर इधर आने के बाद जस्ट यहाँ लिखते हैं डेटा वाव डिले यहाँ लिखते हैं 0.7s सोर्स हो जाएगा जो कि इमेज स्लैश अबाउट। तो मैं इधर लिखूंगा इमेज स्लैश अबाउट 4 सेव करना है इधर। और अब जो है सेव करने के बाद जो हमने 3 डिप्स डाले उसके नीचे आ जाना है डायरेक्टली और यहाँ डिफ क्लास कॉल lg6 लिखना है। फिर उसके बाद h5 का टैग डालना है इधर क्लास दे देनी है। क्लास में मैं लिखूंगा सेक्शन टाइटल और फिर उसके बाद ff सेकेंडरी और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट स्टार्ट। ये लिखने के बाद जस्ट टेक्स्ट प्राइमरी हो जाएगा यहाँ पे और फिर उसके बाद mw नॉर्मल इन सेंटर में आके यहाँ मैं लिखता हूँ अबाउट अस। फिर उसके बाद जो है यहाँ h1 लिखते हैं जो कि क्लास हो जाएगी और यहाँ मैं लिखूंगा md4। फिर इधर जो है यहाँ लिखेंगे जस्ट वेलकम टू, तो मैं इधर लिखूंगा वेलकम टू आईटैग और फिर इसमें मैं लिख देता हूँ क्लास जो कि fa यूटेंसिल्स। फिर अब जो है यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट प्राइमरी और टेक्स्ट प्राइमरी लिखने के बाद जस्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा me2। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे आईटैग के बाद रेस्टोरेंट, तो मैं इधर लिखूंगा रेस्टोरेंट सेव करना है। फिर उसके बाद नीचे आना है पी टैग और यहाँ मैं लिखूंगा क्लास md4 फिर इसमें लॉरेन का टैग डालना है। फिर उसके बाद जो है जस्ट नीचे आना है पी टैग इसमें लिखते हैं md4 कुछ इस तरह और फिर उसके बाद लॉरेन का टैग देना है। फिर अब जो है नीचे आना है यहाँ मैं लिखूंगा डिफ क्लास रो g4 फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा md4 फिर उसके बाद डिफ क्लास कॉल sm और यहाँ लिखेंगे 6 फिर इसमें डिफ क्लास लिखेंगे जो कि डी फ्लैश हो जाएगा और यहाँ लाइन आइटम्स जो कि सेंटर है और यहाँ मैं लिखूंगा बॉर्डर स्टार फिर इसमें लिखेंगे बॉर्डर 5 इस तरह और फिर यहाँ लिखेंगे बॉर्डर प्राइमरी और फिर उसके बाद px3
फिर उसके बाद जो है मैं जस्ट आने नीचे H1, फिर इसमें मैं लिखूंगा क्लास जो कि हो जाएगी फ्लैग श्रिंक, तो मैंने लिखूंगा फ्लैग श्रिंक, फिर उसके बाद 0 और यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले फाइल टेक्स्ट प्राइमरी, मैंने लिखूंगा टेक्स्ट प्राइमरी इस तरह करके, फिर उसके बाद जो है MD0 लिखूंगा, फिर डेटा टॉगल लिखना है और डेटा टॉगल में हम इस बार लिख देंगे काउंटर अप, तो इधर लिख देंगे काउंटर अप इस तरह, फिर इधर मैं 15 लिख दूंगा। ये लिखने के बाद डायरेक्टली नीचे आना है और यहाँ लिखना है डिफ क्लास p-4 या आप लिख सकते हैं ps-4, फिर इधर p टैग डालना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, क्लास में लिखेंगे MD0, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे एयर्स ऑफ, फिर अब जो है आ जाना है नीचे और फिर अब जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा H6, यहाँ क्लास लिख देनी है, क्लास में मैं लिखूंगा टेक्स्ट अपर केस, तो इधर लिखेंगे टेक्स्ट अपर केस MD0 और यहाँ लिखेंगे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लिखने के बाद 3 टिप्स के नीचे आ रहे हैं, यहाँ लिख देना है कॉल SM6, फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास dflex और यहाँ लिखेंगे अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर और यहाँ लिखेंगे बॉर्डर इसका, फिर इसमें लिखते हैं बॉर्डर 5 और फिर यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर प्राइमरी और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा px3, फिर उसके बाद जो है नीचे आना है, यहाँ लिखेंगे H1 क्लास और यहाँ लिखेंगे फ्लैग श्रिंक 0, फिर उसके बाद डिस्प्ले 5, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट प्राइमरी और यहाँ पे लिखूंगा MD0, फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं डेटा टॉगल और डेटा टॉगल में लिखेंगे काउंटर अप, फिर उसके बाद 0 या 50 लिखते हैं इस तरह, फिर अब जो है H1 जो हमने डाला उसके नीचे आके यहाँ पे हमें क्लास देनी है PS-4, फिर उसके बाद p टैग क्लास MD0, फिर अब जो है पॉपुलर, फिर अब नीचे आना है p टैग के यहाँ H6 डालना है, फिर यहाँ क्लास दे देनी है जो कि टेक्स्ट अपर केस, फिर इधर MD0 लिखना है और फिर उसके बाद जो है मास्टर शेफ्स इस तरह करके लिख देना है, फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट जो 4 डिप्स डाले उसके नीचे आ रहे हैं a टैग और H5 की जगह यहाँ क्लास दे देंगे जो कि हो जाएगी BTN प्राइमरी और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा py3, फिर उसके बाद px5 हो जाएगा यहाँ, फिर उसके बाद MT2, फिर href और यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा रीड मोड, सेव हो जाएगा यहाँ और सेव करने के बाद अब जो हमने 4 डिप्स डाले उनके नीचे आ जाने फिर से, तो जैसे ये 4 डिप्स आ गए अब इसके नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे एक डिफ क्लास कंटेनर की क्रिएट करनी है XXL py5 हो जाएगा, फिर डिफ क्लास कंटेनर देना है, मैं लिखूंगा डिफ क्लास कंटेनर, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास टेक्स्ट सेंटर और यहाँ लिखेंगे वाव फेड इन अप, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे डेटा वाव डिले और ये लिखने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा 0.1s, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे H5 में क्लास देनी है जो कि सेक्शन टाइटल भी रहेगी और यहाँ पे मैं लिखूंगा FF सेकेंडरी, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, फिर यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट प्राइमरी इस तरह और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा FW नॉर्मल, फिर इसके बाद सेंटर में आके यहाँ मैं लिखूंगा फूड मेन्यू, फिर उसके बाद जस्ट नीचे आ रहा है H1 टैग क्लास MD5 और H1 में मैं लिखूंगा मोस्ट पॉपुलर, तो इधर लिखते हैं मोस्ट पॉपुलर आइटम्स इस तरह, सेव करना है इसको यहाँ मैं रिलोड करता हूँ, तो अब आप देखेंगे हमें ये सब शो हो गया था जो कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, इमेज घूमती हुई नजर आ चुकी है, ये सारे मेन्यूज शो गए हमारे इफेक्ट के साथ 4 मेन्यूज डाले थे और फिर यहाँ पे आपको इमेजेस भी शो हो जाएंगी, इधर आप देख सकते हैं आ रही इमेजेस और वेलकम अबाउट ऐसा आ जाएगा, वेलकम टू रेस्टोरेंट, पैराग्राफ आ जाएगा उसके बारे में, कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये आ जाएगा, कितने पॉपुलर शेफ्स हैं वो आ जाएगा, फिर उसके बाद हमें रीड बोर्ड की एक बटन मिलेगी जिसमें एक बैकग्राउंड वाइट हमारे इफेक्ट मिलेगा जो कि टोटली अमेजिंग लग रहा है, नीचे आके फूड मेन्यू के ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे मोस्ट पॉपुलर आइटम्स वगैरह वो भी हम पुट करने वाले हैं, तो ये हमने यहाँ तक इसको क्रिएट किया, तो अब जो है अब हमें आ जाना है इसके नीचे और यहाँ पे एक डिफ क्लास क्रिएट करनी है टैग के नीचे और यहाँ मैं टैग क्लास डालूंगा, यहाँ टैग सेंटर हो जाएगा वाव फेड इन अप, ये लिखने के बाद जस्ट डायरेक्टली इधर मैं लिखता हूँ डेटा वाव डिले, यहाँ लिखेंगे 0.1s, फिर यहाँ मैं यूएल का टैग डालूंगा और यहाँ क्लास देनी है net और यहाँ लिखेंगे फिल्स और यहाँ लिखेंगे डी इनलाइन फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट और फिर यहाँ पे लिखेंगे सेंटर, ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर बॉटम और यहाँ MD5 लिखना है, फिर उसके बाद जस्ट li टैग यहाँ क्लास देनी है जो कि नेम आइटम, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे a टैग लिखना है और HL की जगह यहाँ क्लास लिखना है, क्लास में लिखेंगे dflex और यहाँ लाइन आइटम्स जो कि हो जाएगा सेंटर और फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इधर से टेक्स्ट स्टार्ट लिखना है और फिर यहाँ पे लिखेंगे MX3, तो MX3 लिखने के बाद MS0 लिखेंगे इधर,
फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैं लिखूंगा PV3 और FA। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे डेटा BS टॉगल, तो मैं इधर लिखूंगा डेटा BS टॉगल इस तरह इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ href लिख देंगे और फिर यहाँ पे टैब 1। फिर उसके बाद जो है जस्ट अब हमें आ जाना है नीचे आई टैग और फिर उसके बाद यहाँ क्लास देंगे FA कॉपी। ये लिखने के बाद सब जो है FA2x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट प्राइमरी और फिर उसके बाद जो है इसी आई टैग के नीचे आना है डिफ क्लास देनी है PS3 इस तरह। फिर स्मॉल का टैग डालना है और यहाँ पे क्लास दे देंगे इसी टैग में जो कि टेक्स्ट बॉडी और फिर सेंटर पे लिखेंगे पॉपुलर। फिर अब जो है आ जाना है नीचे और यहाँ पे लिखेंगे H6। फिर इसमें क्लास देनी है जो कि MD-N1। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे MD0। सेंटर में लिखना है ब्रेकफास्ट इस तरह करके सेव, तो स्पेस दे के लिखते हैं आप तो फिर इस तरह लिखते हैं ब्रेकफास्ट डायरेक्टली सेव करना है इसको। और फिर उसके बाद जो हमने LI टैग डाला है क्लोज वाला उसके नीचे आना है और LI क्रिएट करना है जिसमें मैं लिखूंगा नया आइटम की क्लास और यहाँ A टैग डालना है href की जगह क्लास देंगे जो कि dflex align आइटम सेंटर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट स्टार्ट लिखने के बाद MX3 हो जाएगा और PV3। फिर उसके बाद नीचे आने यहीं पे डेटा BS टॉगल लिख देंगे और डेटा BS टॉगल लिखने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा पिन href और यहाँ लिखेंगे #tab2। फिर उसके बाद नीचे आना आइटम और यहाँ लिखेंगे FA hamburger और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे FA2x और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा टेक्स्ट प्राइमरी। फिर यहाँ पे जो है अब हमें आ जाना है नीचे डिफ क्लास और यहाँ पे लिखेंगे PS3। फिर उसके बाद नीचे आ रहे हैं यहाँ पे स्मॉल का टैग डालना है क्लास जो कि टेक्स्ट बॉडी और फिर उसके बाद जो है सेंटर में आना है और यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल सेव और फिर उसके बाद जो है वापस नीचे आना है इसी टैग के जो कि हमने डाला है यहाँ पे तो मैं आ जाऊँगा जस्ट उसी के नीचे H6। इसमें क्लास देनी है जो कि MD-N1 तो यहाँ पे लिखेंगे MD0। फिर अब जो है सेंटर में आके हमें लिखना है लंच इस तरह सेव करना है। फिर LI टैग के नीचे आके एक और LI क्रिएट करना है जिसमें नया आइटम दे देंगे क्लास A टैग आ जाएगा इधर और यहाँ पे A टैग फिर आ जाएगा dflex और अलाइन आइटम सेंटर। फिर इसमें मैं लिखूंगा टेक्स्ट स्टार्ट। फिर उसके बाद यहाँ MX3 हो जाएगा और MD या ME0। फिर ये लिखने के बाद जो सब जो है अब हमें बेसिकली ये करना है कि आप इसके आगे आ जाना और यहाँ लिखना है डेटा BS टॉगल और यहाँ पे लिख देनी है एक क्लास जो कि फिल की हो जाएगी और फिर href में #tab3। फिर उसके बाद जो है आ जाए नीचे आई टैग और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास लिखने के बाद FA utensils लिख दिया और मैं इधर लिखूंगा FA -utensils इस तरह। ये लिखने के बाद जस्ट FA2x फिर इसमें लिखना है टेक्स्ट प्राइमरी इस तरह करके। फिर उसके बाद आप हमें जो है इसी आई टैग के नीचे आ रहा है यहाँ पे एक डिफ क्लास क्रिएट करनी है जो कि PS3। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है स्मॉल टैग और यहाँ क्लास टैग डालनी है मतलब क्लास डालनी है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉडी दे देंगे इस तरह। फिर सेंटर में आ रहा है यहाँ मैं लिखूंगा लर्निंग और फिर अब जो है स्मॉल टैग से नीचे आ रहा है H6 फिर इधर क्लास आ जाएगी जो कि MD-N1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा MD0। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे डिनर सेव करना है इसको यहाँ तक और मिलेगा। तो आप देखेंगे हमें जो है कुछ मेन्यूज इधर शो हो जाएंगे तो इधर आप देख सकते हैं पॉपुलर ब्रेकफास्ट पॉपुलर स्पेशल लंच और लवली डिनर के कुछ मेन्यूज हमें इधर शो हो रहे हैं। तो जो हमें जिस टाइप के टॉप आ जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये सब हमने जो है कुछ इस तरह डाल दिया और इस तरह हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली ये डालने के बाद जस्ट अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इसमें हमें कुछ इफेक्ट्स वगैरह भी शो हो रहे जैसे MX3 के MX3 और ME0 के जो कि हमने डाले टेक्स्ट स्टार्ट फ्लैक्स वाला dflex और फिर अलाइन आइटम्स फिर डेटा BS टॉगल में जो है हमने इधर डाला है पिल और फिर टैग भी हमने डाल दिया। फिर हमने PS3 की एक क्लास डाली उसमें मैंने स्मॉल टैग का इस्तेमाल करके टेक्स्ट बॉडी डाली MD-N1 डिफाइन किया और फिर MD0 इस तरह। तो इस तरह जो है आपने भी डिफाइन कर देना और फिर जैसे ये हुआ उसके बाद हमें UL टैग जो हमने डाला है उसके नीचे आ जाए। तो हमारा जो UL टैग है अगर मैं आपको दिखाऊँ ये हमारा UL टैग है और हमें जो है जस्ट इसी के नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक डिफ क्लास क्रिएट कर देनी है जो कि टैब कंटेंट की होगी ताकि हम इसमें टैब का कंटेंट क्रिएट कर सकें। फिर इसमें आईडी में दे दूंगा टैब 1 फिर इसमें क्लास दे देनी है जो कि टैब पेन की हो जाएगी और यहाँ पे मैं लिखूंगा पेड शो और यहाँ लिखेंगे P-0 और यहाँ एक्टिव लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास रो G4 तो इधर लिखेंगे रो G4 हो जाएगा इधर और यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास कॉल LG और यहाँ मैं लिखूंगा 6। फिर इसमें लिखेंगे डिफ क्लास और यहाँ लिखेंगे dflex अलाइन आइटम क्योंकि हो जाएगा सेंटर।
फिर अब जो है इमेज और सोर्स की जगह यहाँ क्लास आ जाएगी। क्लास में मैं सेट कर दूंगा डी फ्लैग्स और यहाँ पे लिख देंगे, ये आप कह सकते हैं डी फ्लैग्स हमने ऊपर दे दिया, तो यहाँ पे सेट कर देंगे फ्लैग शेयरिंग डेट 0 और फिर यहाँ मैं लिखूंगा इमेज फ्लूइड, फिर उसके बाद राउंडेड, यहाँ सोर्स लिखिए और राउंडेड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होती है तो अब सही है। सोर्स में मैं लिखूंगा इमेज स्लैश मेन्यू 1 डॉट जेपीईजी और यहाँ लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल्स टू विड्थ जो कि 80 पिक्सल। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है हमें इसी टाइप के नीचे आना है, यहाँ एक और डिव क्रिएट करना है जिसमें हम क्लास दे देंगे w100 डी फ्लैग्स और यहाँ लिखेंगे फ्लैग्स कॉलम इस तरह करके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट स्टार्ट इस तरह और ps4। ये लिखने के बाद h5 और यहाँ लिखेंगे h5 में क्लास डी फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या सेंटर की जगह यहाँ कर देते हैं बिटवीन, और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा बॉर्डर बॉटम और यहाँ लिखेंगे pb2 इस तरह से। और ये लिखने के बाद जो स्पेंड टैग लिखना है यहाँ लिखते हैं चिकन बर्गर इस तरह, तो फिर नीचे आना है स्पेंड टैग क्लास SR ओनली, फिर इसमें मैं लिखूंगा या कह सकते हैं SR ओनली की जगह यहाँ मैं लिखता हूँ टैक्स प्राइमरी और यहाँ पे मैं लिख दूंगा $115 इस तरह करके, इस तरह लिख दिया। फिर इसमें स्मॉल टैग डालना है, फिर एक और क्लास देनी है जो कि FSD और यहाँ लिखेंगे इटैलिक, फिर इसमें आ जाना यहाँ लिखेंगे सम और यहाँ मैं लिखूंगा सम इस तरह करके, फिर सिटी का और यहाँ लिखेंगे एरर और फिर यहाँ मैं लिखूंगा $8 जस्ट टू, तो यहाँ लिखेंगे दिया सेव करना है। और फिर उसके बाद जस्ट नीचे आ रहा है और जो हमने डाला है कॉल LG6 जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया इसी तरह हमें यहाँ भी डालना है और 3 डिव्स तक भी डालना है। तो कॉल LG6 हमारा ये रहा और 3 डिव्स तक मैं इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, तो आप देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। अब जो है हमें यहाँ पे इमेज चेंज कर देनी है, जैसे हमने सोर्स इमेज 1 में जो है हमने मेन्यू 1 डिफाइन किया था, इधर मैं कर दूंगा दूसरे वाले में मेन्यू 2 इस तरह। विड्थ वगैरह सारी सेम रहेगी, लेकिन अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं मतलब इधर जैसे मतलब अगर आप प्रोडक्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी और प्राइस भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, सिर्फ इमेज का जो है चेंज करेंगे। तो इसी तरह करके आपको जो है इमेज चेंज कर देनी है जैसे हमने ऊपर डाली, फिर उसी के बाद नीचे आ जाना है 3 डिव्स के और यहाँ पे जो है सारी चीज़ें सेम रहेगी, जस्ट मैं मेन्यू 1 को 3 में बदल दूंगा क्योंकि हमारी ऊपर 2 आ गई इमेज, सेव करके रिलोड करना है। तब नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं 3 इमेजेस हमें डिफरेंट शो हो चुकी है, लेकिन नाम और जो पैराग्राफ हमने लिखा है वो सब सेम है। तो अब ये लिखने के बाद जस्ट डायरेक्टली हमें और भी चीज़ें डालनी है, तो अब जो 3 डिव्स हमने डाले उसके नीचे एक और बार आ जाना है और अब जो है हमें मेन्यू 4 डालना है इसके अंदर क्योंकि 3 इमेजेस हमने ऑलरेडी इधर पुट कर दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 3 तक हमने डाल दी, फिर उसको पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं कर दूंगा इसको मेन्यू 4 इस तरह करके, फिर उसके बाद जो है 3 टिप्स के फिर नीचे आना है, इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे इस बार मैं कर दूंगा मेन्यू 5, तो यहाँ लिख देंगे मेन्यू 5 इस तरह। और फिर उसके बाद जो है 3 टिप जो हमने डाले फिर इसके नीचे आना है, तो इधर आप देख सकते हैं अब मैंने इसको मेन्यू 5 कर दिया। फिर इसके बाद ही आपको मेन्यू 6 भी डालना है, तो मैं इधर आ जाऊँगा, फिर इधर आ जाऊँगा एट द टॉप आ जाएंगे, जैसे हमने ऊपर मेन्यू 5 डाला अगर मैं आपको दिखाऊँ इधर मैं कर दूंगा मेन्यू 6, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ इमेज चेंज होगी और यहाँ लिख देंगे मेन्यू 7 सेव करना है। फिर उसके बाद जस्ट अब देखते हैं कि हमें और डालना है नहीं, तो इधर हमने मेन्यू 7 तक डाल दिया, फिर उसके बाद इसी तरह मेन्यू 8 डालना है और मेन्यू 1 फिर डाल देना, तो इधर आ जाता है नीचे मेन्यू 1 डल गया, बस हमें जो है इसके ऊपर वाले में मेन्यू 8 कर देना क्योंकि ऊपर इससे ऊपर हमने 7 डाला मेन्यू, ओके ये हो गया। अब इस तरह करने के बाद जस्ट डायरेक्टली तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसमें सारी चीज़ें चेंज कर दी और इस तरह हमारा जो इफेक्ट है वो इसमें आ चुका है। तो अब हमें बेसिकली ये करना है इसके अंदर के जो हमने इफेक्ट डाला है इधर, अब हमें जस्ट इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने होंगे जो 1 वाला हमने डाला है, तो मैं इसमें जो है कंट्रोल V कर दूंगा और इस तरह करके, तो अब हमने मेन्यू 8 तक डाल दिए मेरे ख्याल में, मैं आपको दिखाऊँ 7 आ गया, यहाँ लिख देते हैं मेन्यू 8 सेव करना है। तो आप देख सकते हैं अब मैंने मेन्यू 8 तक जो है सारी इमेजेस डाल दी है। अब हमें एक और मेन्यू 1 क्रिएट करना है जो कि सेम रहेगा, लेकिन उसमें चेंजेस ये होंगे कि हमें जो है जस्ट जो हमने डिव्स डाले हैं जैसे हमने इसके बाद जो है 5 डिव्स का इस्तेमाल किया, तो 1 2 3 4 5 ये हमें 5 डिव्स इसके नीचे है ना, और हमें जो है जो हमने ऊपर सबसे पहले जो आईडी डाली थी ये वाली टैब 1 से लेके जो हमने आईडी डाली थी, जस्ट हमें यहाँ से लेके इसको यहाँ तक कॉपी कर लेना है टैब आईडी तक, और यहाँ पे जस्ट इसको ऐसे करने के बाद हमें जो है जस्ट आ जाना है अब इसके नीचे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं
तो हमें जस्ट आ जाना है इधर, और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं कर दूंगा पेस्ट। और इस तरह जो है पेस्ट करने के बाद अब आपको बेसिकली ये करना है कि एक डिफ क्रिएट करते हैं पहले। यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं जो कि टैब हो जाएगा, टैब 2। और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, एक काम करते हैं मैनुअली क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमें मसला ना हो। और फिर मैं इधर लिखूंगा टैब पेन पेड शो, और यहाँ लिखेंगे pd0। ये लिखने के बाद जस्ट अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ क्लास रो, और यहाँ लिखेंगे g4। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास कॉल ng6। फिर उसके बाद डिफ क्लास, और यहाँ मैं लिखूंगा dflex, और यहाँ अलाइन आइटम्स, तो यहाँ लिखेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। फिर उसके बाद आ रहे हैं नीचे, और यहाँ लिखते हैं इमेज, और इमेज में मैं सोर्स को अभी रिमूव कर दूंगा। इसकी जगह क्लास ले लेंगे जो कि टेक्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा 0 और इमेज फ्लूइड। इमेज फ्लूइड डालने के बाद यहाँ लिख देंगे राउंडेड सोर्स, सोर्स में लिख देंगे image/menu1, तो ये लिख दिया menu1। फिर उसके बाद स्टाइल, और फिर यहाँ मैं लिखूंगा विड्थ में आ जाएगा 80 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें आना है नीचे, और यहाँ लिख देंगे डिफ क्लास, तो मैं इधर लिखूंगा डिफ क्लास इस तरह, और यहाँ लिख देंगे w100 या dflex हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्लेक्स कॉलम, मैं इधर लिखूंगा इस तरह करके फ्लेक्स कॉलम, और यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट स्टार। फिर उसके बाद जो है जिसका जो है इसके आगे और ps4 इस तरह लिख देंगे। फिर उसके बाद जस्ट h5 डालना है इधर, और यहाँ क्लास दे देनी है जो कि हो जाएगी इधर dflex की, और यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ 15 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है बॉर्डर बॉटम, फिर यहाँ लिखेंगे pb2। उसके बाद जो है आ जाना है नीचे स्पेंड टैग, और यहाँ मैं लिखूंगा चिकन बर्गर इस तरह करके लिख दिया। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है स्पेंड टैग, और यहाँ लिखेंगे क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट प्राइमरी, तो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट प्राइमरी। फिर इसमें मैं लिखूंगा $115 इस तरह का। तो अब जो है अब आप देख सकते हैं हमने इधर डाल दी है चीज़। और फिर उसके बाद नीचे आना है स्मॉल टैग हो जाएगा इधर, और स्मॉल टैग लिखने के बाद इधर क्लास लिख देनी है जो कि fst इटैलिक। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे एप्सम, और यहाँ लिखेंगे एप्सम इस तरह करके सिलीका, और यहाँ लिखेंगे $8, और यहाँ लिखेंगे जस्ट 2 सेव करना है इसको। और यहाँ तक जो है सेव करने के बाद यहाँ तक हमने इसको डाला है, जैसे हमने कॉल ng6 तक डाला है इसको। तो अब जो है जहाँ तक हमने कॉल ng6 डाला है तो इसको उधर तक ले लेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस कॉल ng6 ये रहा, और यहाँ तक हमने इसको 3 डिफ्स तक डालने हैं। और फिर ये करने के बाद जस्ट अब नीचे आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे वही चेंजेस होंगे जैसे हमने ऊपर किए थे, सिर्फ इमेज चेंज कर दी थी। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा मेन्यू 2 इसी तरह, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी और मेन्यू भी सेम ही रहेगा। फिर नीचे आना और इस तरह करके मैं इसको जो है 4 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह करके मैंने इसको जो है बहुत बार पेस्ट कर दिया। अब जो हमारी पहली इमेज थी, जैसे मैंने इसको नाम दिया मेन्यू 2 का, पहली तो मेन्यू 1 है, दूसरी मेन्यू 2 और फिर तीसरी मेन्यू 3 हो गई, मेन्यू 4 इसी तरह करके, फिर इस तरह हो गई मेन्यू 5, मेन्यू 6। अब जो है हमने इधर मेन्यू 6 तक सारी इमेजेस डाल दी है इस तरह करके। तो आपको भी जो है इसी तरह मेन्यू 8 तक डालनी है इमेजेस, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया था कि मेन्यू 8 तक हमने इमेजेस डाली है। तो अब जो है मैं आ जाऊँगा जस्ट इसी के नीचे फिर से पेस्ट। अब जो है अब हमें एट द टॉप आ जाना है इसके, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेन्यू 7, क्योंकि हमने ऊपर मेन्यू 6 लिखा है और यहाँ मेन्यू 8 लिखा है। सेव करना है इसको यहाँ पे। और अब जो है हमें जैसा आ जा रहा है 5 टिप्स के नीचे जो कि हमने क्रिएट किए इधर, तो आप देख सकते हैं आ गए 5 टिप्स और इनके नीचे फिर आ जाना। और हमें एक और टैब 3 क्रिएट करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया इसमें हमने 3 टैब्स डाले, एक ब्रेकफास्ट का, एक लंच का और एक डिनर का। तो हमें तीनों में जो है प्रोडक्ट्स डालनी होगी। तो अब जो है हमारा लास्ट पैनल है जो कि अब हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अब बेसिकली हमें जो है आ जाना है इसके ऊपर जो कि एट द टॉप का सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कितने टिप्स पुट किए वो हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर हमने जो है बेसिकली 1 2 3 4 5 ओके, तो हमने जो है इधर 5 डिप्स पुट किए, मतलब हमें 5 क्लोज ही डिप्स चाहिए। तो अब जो है मैं जस्ट इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, डायरेक्टली जहाँ तक हमने लिखा है जस्ट इसी तरह इसको मैं यहाँ से कर दूंगा कॉपी। और फिर इसको यहाँ कॉपी करने के बाद अब डायरेक्टली आपको जो है नीचे की साइड पेस्ट कर देना है जहाँ पे हमने स्पेसिंग दी है 5 डिप्स के बाद। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब हमें इसको 2 बार और क्लोज डिप डालनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमने जो है 2 डिप्स डाल दी है ऑलरेडी, मतलब हमने 2 डिप्स क्लोज वाले डाल दिए। तो अब हमें जरूरत नहीं है इसमें गैप देते हैं और इस तरह। तो आप देख सकते हैं ये आ गई स्पेसिंग। अब मैं इधर टैब 2 की जगह इसको जस्ट कर दूंगा टैब 3, यहाँ पे इसको कर दिया टैब पेन फेड शो P0, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। ये फ्लैक्स अलाइन भी सेम रहेगा जो कि श्रिंक हो गया है इधर, फ्लैक्स श्रिंक।
और यहाँ पे मेन्यू 1 हमने लिख दिया और फिर यहाँ चिकन बर्गर और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। अब हमने जो है 3 डिप्स जो हमने डाले हैं, मतलब आखिरी जो हमारा 3 डिप्स है, जस्ट हमें इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पेस्ट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा मेन्यू 2, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये इसको मेन्यू 2 कर देंगे और इसी तरह करके अब हमें मेन्यू 8 तक ले जाना है इसको। तो मैं इसमें यहाँ पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट 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 पेस्ट, इस तरह किया, पेस्ट किया तक। अब देखते हैं कि हमने जो है कितने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो अब जो है ये हमारा आ गया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारा मेन्यू 1 था, ये मेन्यू 2 हो गया, मतलब दूसरी इमेज, ये तीसरी आ गई इमेज, ये हमारी आ गई चौथी इमेज, ये हमारी 5वीं, और ये हमारी 6ठी इमेज आ गई, और ये हमारी 7वीं इमेज, और ये हमारी 8वीं। मतलब सारी इमेजेस हमने इधर पुट कर दी है, सेम टेक्स्ट है और सेम हमने जो है इधर हेडिंग रखी है, मतलब सारी चीज़ें हमने इधर सेम रखी है इस तरह। तो आपको भी जो है जस्ट डायरेक्टली इस तरह जो है ये सारी चीज़ें कर देनी है। उसके बाद इस मेन्यू को ऐड कर देना, चेक करते हैं कि हो चुका है रिलोड। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं डिफरेंट पैनल्स को प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं इधर हमें सारे पैनल्स बिल्कुल परफेक्टली वर्क होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब ये हमारी कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं हमारी एक और कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने जो जितने भी डिप्स अभी तक डाले हैं, हमें जस्ट इसके नीचे आ देने। जैसे हमने जो है 6 डिप्स डाले हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं 6 7 8 9, तो हमने 9 डिप्स इधर पुट किया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गए हमारी 9 डिप्स। इन 9 डिप्स के आपको आ जाना है नीचे, और यहाँ एक डिप क्लास कंटेनर भी क्रिएट करनी है, XXL हो जाएगी, और यहाँ मैं py5 कर दूंगा। और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे px0, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा वाओ फेड इन, ये लिख दिया। फिर उसके बाद डेटा वाओ डिले, और यहाँ मैं लिखूंगा 0.1s। फिर इसमें क्लास देनी है, यहाँ पे हो जाएगा रो, और रो में मैं लिखूंगा g0। ये लिखने के बाद डिफ क्लास, और डिफ क्लास में कॉल md, फिर कॉल md 6 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास वीडियो, और डिफ क्लास वीडियो लिखने के बाद बटन, बटन में टाइप आ जाएगी जो कि बटन हो जाएगी इस तरह। और फिर उसके बाद जो है अब हमें आ जाना है आगे, यहाँ लिखेंगे btn प्ले, और btn प्ले लिखने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा डेटा ps टॉगल, और इस तरह करके जो है मैं इधर लिखूंगा मॉडल इस तरह। और मॉडल लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आ जाना है आगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा सोर्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा https स्लैश, और फिर यहाँ पे लिखेंगे www.youtube, मतलब आप एक URL डाल सकते हैं किसी भी वीडियो का। जैसे मैं इधर एक डाल देता हूँ URL इस तरह करके, तो मैं इधर लिखता हूँ youtube.com/embed, और यहाँ लिखेंगे स्लैश, और कोई भी आप एक इस तरह करके URL डाल। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा डेटा bs टारगेट इज इक्वल्स टू, और यहाँ मैं लिखूंगा वीडियो मॉडल, और फिर उसके बाद जो हमने इधर डाला है, फिर अब जो है मैं आ जाना है नीचे, यहाँ पे स्पेंड टैग डालना है। फिर उसके बाद नीचे आना है, यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास कॉल md 6 हो जाएगा, bg डाल। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे डी फ्लैक्स, और यहाँ अलाइन आइटम्स हो जाएंगे जो कि सेंटर। फिर उसके बाद जो है नीचे आना है, यहाँ पे लिखेंगे डिफ क्लास p5, और यहाँ लिखेंगे वाओ फेड इन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं डेटा वाओ डिले, फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा 0.2s, फिर h5, इसमें मैं क्लास लिख दूंगा जो कि सेक्शन टाइटल, फिर अब जो है ff सेकेंड की, और फिर उसके बाद जो है जिसका है आगे टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट प्राइमरी, और यहाँ पे जो है जिसका हमें यहाँ पे लिखना है w नॉर्मल। फिर अब जो है जस्ट अब हमें आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं रिजर्वेशन, और फिर उसके बाद जो है h1 टैग करना है, यहाँ क्लास देनी है जो कि टेक्स्ट वाइड, फिर टेक्स्ट वाइड लिखने के बाद md4, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बुक आ टेबल। फिर अब जो है जिसका आ गया, यहाँ लिखते हैं ऑनलाइन, सेव करना है इसको। और फिर उसके बाद जो है यहाँ फॉर्म टैग लिखते हैं, एक्शन रिमूव कर देना है जस्ट। तो उसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ डिफ क्लास रो g5 लिखते हैं, यहाँ g3 लिखते हैं। फिर उसके बाद डिफ क्लास कॉल md, और यहाँ हो जाएगा 6। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा डिफ क्लास फॉर्म लोडिंग, फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप हो जाएगा टेक्स्ट, फिर क्लास फॉर्म कंट्रोल, फिर उसके बाद आईडी लिख देंगे नेम, मैं इधर लिखूंगा आईडी नेम, फिर उसके बाद प्लेस होल्डर में लिखेंगे योर नेम। फिर अब जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा टेबल, और में लिख देंगे नेम, और यहाँ में लिखूंगा योर नेम, फिक्स सेव करना है इसको। फिर डिफ डालना है इधर, और डिफ डालने के बाद जस्ट इसमें क्लास देनी है कॉल md 6 की। फिर उसके बाद जो है अब हमें आ जाना है सीधे नीचे, और यहाँ मैं लिखूंगा डिफ क्लास फॉर्म लोडिंग, और फिर उसके बाद नीचे आना है, यहाँ इनपुट टाइप ईमेल हो जाएगा,
और यहाँ क्लास लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल। फिर उसके बाद जो है गैप देगा आईडी ईमेल हो जाएगी और यहाँ लिखेंगे प्लेस होल्डर जो कि योर ईमेल। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है अब आगे यहाँ पे जस्ट नीचे आके लेबल फॉर्म में ईमेल आ गया और यहाँ लिखेंगे योर ईमेल इस तरह, इसको यहाँ सेव करना और यहाँ रिलोड। तो अब आप देख सकते हैं, अब मैं अगर आपको दिखाऊं लास्ट में आके तो आप देख सकते हैं इधर हमें जो है ये शो हो चुका है एक वीडियो और यहाँ पे बुका टेबल में योर नेम ईमेल का जो इनपुट बॉक्स है वो भी हमें इधर शो हो चुके हैं। फिर इसमें एक डिफ क्लास देना है जो कि हो जाएगी कॉल MD6 की। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डिफ क्लास कर देनी है और यहाँ पे लिख देंगे इस बार फॉर्म फ्लोटिंग, उधर मैं लिखूंगा फॉर्म फ्लोटिंग इस तरह करके। अब यहाँ लिख देंगे डेट, ये लिखने के बाद यहाँ आईडी लिखेंगे डेट 3। फिर उसके बाद अब यहाँ लिखते हैं डेटा टारगेट इनपुट, मैं इधर लिखूंगा डेटा टारगेट इनपुट और यहाँ लिखेंगे नियरेस्ट, इधर लिख देंगे नियरेस्ट कुछ इस तरह करके। फिर उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा और यहाँ पे लिखेंगे क्लास फॉर्म कंट्रोल और यहाँ पे अब जो है मैं लिखूंगा डेट टाइम पिकर। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे डैश इनपुट, फिर स्पेस देनी है और यहाँ लिखेंगे डेट टाइम। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अब मैं लिखूंगा प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर में लिखेंगे डेट, मैं इधर लिखूंगा डेट एंड टाइम। ये लिखने के बाद जस्ट अब जो है मैं लिखना है डेटा टारगेट और यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल लिख दूंगा डेट 3। फिर उसके बाद जो है डेटा टॉगल इस तरह करके और यहाँ पे मैं लिखूंगा इस बार डेट टाइम पिकर, मैं इधर लिखूंगा डेट टाइम पिकर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे स्लैश डालना है इस तरह, लेबल फॉर में मैं लिखूंगा डेट टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे डेट टाइम, इधर लिखूंगा डेट एंड टाइम इस तरह करके सेव कर दें। फिर उसके बाद यहाँ डिफ क्लास देनी है कॉल MD6। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास और यहाँ लिखेंगे फॉर्म फ्लोटिंग। फिर अब जो है जस्ट यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट और यहाँ नेम और आईडी मूव कर देंगे और इसकी जगह मैं डाल दूंगा क्लास जो कि हो जाएगा फॉर्म सेलेक्ट। फिर यहाँ लिखेंगे आईडी जो कि सेलेक्ट 1 और फिर इसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट। फिर इसके बाद नेम और आईडी को मैं रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे लिख देंगे क्लास फिर से और क्लास में लिखेंगे फॉर्म सेलेक्ट। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे आईडी सेलेक्ट 1। फिर अब जो है नीचे आना और यहाँ लिखते हैं ऑप्शन वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे लिखेंगे पीपल 1। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे ऑप्शन वैल्यू 1 या वैल्यू 2 लिख देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीपल 2। ये लिखने के बाद जस्ट फिर आ जाने नीचे ऑप्शन और ऑप्शन में वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ लिखते हैं पीपल 3। तो इसी तरह करके आपको जो है लिख देना और फिर जो हमने क्लोज सेलेक्ट टैग डाला है उसके नीचे आना और यहाँ लेबल फॉर में लिख देंगे सेलेक्ट 1। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल इस तरह करके सेव। फिर उसके बाद डिफ क्लास मेरा जस्ट आ जाऊंगा नीचे, यहाँ पे लिखेंगे डिफ क्लास इस तरह करके और यहाँ पे जस्ट हमें लिखना है कॉल 12। फिर उसके बाद नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे अब हमें बेसिकली ये जो क्लोज सेलेक्ट टैग है इसको रिमूव कर देना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ऊपर क्लोज कर दिया तो हमें इधर जरूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद आ जाना है इधर और यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास और यहाँ मैं लिखूंगा फॉर्म फ्लोटिंग और अब जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया लिखने के बाद अब जहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया डाला है उसमें जो है मैं कुछ चीज़ें रिमूव करूँगा जैसे रोज कॉलम्स नेम आईडी और इसकी जगह मैं क्लास दे दूँगा जो कि फॉर्म कंट्रोल की हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा प्लेस होल्डर जिसमें लिखेंगे स्पेशल रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद आईडी लिखेंगे मैसेज। फिर अब यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल जो कि हो जाएगी हाइट और यहाँ मैं 100 लिख दूँगा और पिक्सल लिख देंगे 100 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है जो हमने लेबल का टैग डाला है उसमें आ जाएंगे और यहाँ मैं लिख दूँगा लेबल फॉर मैसेज हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे स्पेशल रिक्वेस्ट। फिर सेव करना है इसको और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास और डिफ क्लास में जो है अब मैं इधर लिखूँगा कॉल 12 तो इधर से कॉल 12 लिखना है। फिर इसमें बटन लिख देना है और यहाँ क्लास लिख देंगे जो कि BTN प्राइमरी और यहाँ पे मैं लिखूँगा W100 और PY जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। फिर इसमें टाइप लिख देंगे, टाइप में मैं लिखूंगा सबमिट इस तरह करके तो ये हमने लिख दिया सबमिट। फिर सेंटर में आना और यहाँ लिखते हैं पुट नाउ सेव और फिर इसमें रिलोड करते हैं। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमें जो है इधर शो हो चुके हैं नंबर ऑफ पीपल, इधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमें जो है इसमें कुछ एरर शो हो रहे हैं। तो अब जो है मैं इधर इस मिस्टेक्स को जो है परफेक्टली फाइन कर देना है। तो अब हमने इधर से फॉर्म सेलेक्ट डाला है और आईडी में मैंने सेलेक्ट 1 डिफाइन किया है। तो अब जो है हमें बेसिकली इसमें कुछ इसी तरह की चीज़ें डालनी है और फिर इसमें हमने डेट एंड टाइम नंबर ऑफ पीपल अगर मैं डिफाइन करें तो इधर आप देख सकते हैं हमने डाल दिया इधर
डेट एंड टाइम, नंबर ऑफ पीपल। इसमें मैंने जो है क्लास दी है पहले कॉल MD6 की, और फिर इसमें हमने सेलेक्ट का एक ही टैग डालना है जो कि हमने इधर डाल इस तरह करके डाल दिया। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक टैग डाल दिया, और अब मेरे ख्याल में इधर हमें कुछ एरर शो नहीं होने वाले। तो अब मैं अगर इसको सेव करके रिलोड करता हूँ तो इधर आप देखेंगे इधर हमें शो हो गया नंबर ऑफ पीपल ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। तो हमने बाय मिस्टेक 2 सेलेक्ट मेन्यूज डाल दिए थे जिसकी वजह से वो हमें एरर शो करता है। और इधर हमें बुक नाउ की भी बटन शो हो चुकी है जो कि टोटली अमेजिंग लग रही है। अब जो है ये सब डालने के बाद अब हमें जो है फॉर्म के बाद जो 4 टिप्स डाले उनके नीचे आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये आ गए 4 टिप्स फॉर्म के बाद। यहाँ पे एक और टिप क्लास क्रिएट करनी है मॉडल फीड की, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी वीडियो मॉडल इस तरह करते हैं। फिर इसमें टैग इंडेक्स लिखना और यहाँ 1 लिख देंगे या -1 भी कह सकते हैं इसको। एरिया लेबल्ड बाय मैं लिखूंगा एरिया लेबल्ड बाय, फिर यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल मॉडल मैं लिखूंगा एग्जाम्पल मॉडल, और यहाँ लिखेंगे लेबल। फिर उसके बाद एरिया हिडन टू मैं लिखूंगा एरिया हिडन टू। फिर उसके बाद डिफ क्लास मॉडल, और यहाँ मैं लिखूंगा जस्ट डायलॉग इस तरह करके। फिर उसके बाद आ गए नीचे और यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास और मॉडल कंटेंट, तो मैं लिखूंगा मॉडल कंटेंट ग्राउंडेड और 0। फिर उसके बाद नीचे आना और यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास और मॉडल हेडर। फिर उसके बाद जो है H5, फिर इसमें क्लास देनी है जो कि मॉडल टाइटल। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं आईडी में मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, और यहाँ लिखेंगे मॉडल लेबल। फिर अब जो है यहाँ सेंटर में मैं लिखूंगा यूट्यूब वीडियो का एक ऑप्शन जिस तरह करके सेव करना। फिर उसके बाद जो है बटन टाइप, और यहाँ लिखेंगे बटन। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है क्लास DTN क्लोज, और यहाँ लिखते हैं डेटा BS, और यहाँ लिखते हैं डिसमिस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडल इस बार कुछ इस तरह करके। फिर एरिया, और यहाँ लिखेंगे लेबल। फिर उसके बाद जो है जस्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा इस बार क्लोज, सेव करना है इसको। और फिर अब जो है यहाँ पे हमने जो टैग डाला इसके नीचे आना है, यहाँ लिखेंगे डिफ क्लास जो है मॉडल बॉडी, और यहाँ पे जस्ट आना है नीचे यहाँ पे डिफ क्लास रेशियो, और यहाँ लिखेंगे रेशियो डेफ 16:9। तो इधर मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद जो है आई फ्रेम, और फिर यहाँ पे मैं सोर्स और फ्रेम बॉर्डर को रिमूव कर दूंगा जो कि हमने इधर डाला है। इसकी जगह यहाँ क्लास दे देंगे जो कि हो जाएगी इम्बेड रिस्पॉन्सिव, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आइटम। सोर्स एम्प्टी रहेगा, या फिर आप अगर चाहें तो उसमें कोई सोर्स का लिंक डाल सकते हैं। फिर इसमें आईडी दे देंगे वीडियो। उसके बाद जो है मैं इधर लिखूंगा अलाउ फुल स्क्रीन, मैं इधर लिखूंगा अलाउ फुल स्क्रीन, और यहाँ लिखेंगे अलाउ स्क्रिप्ट एक्सेस, मैं इधर लिखूंगा अलाउ स्क्रिप्ट एक्सेस इस तरह करके, और यहाँ लिखेंगे ऑलवेज। सेव करना है इसको, यहाँ लिखते हैं अलाउ, और यहाँ लिखते हैं ऑटो प्ले, इधर लिखते हैं ऑटो प्ले सेव। फिर उसके बाद जो है नीचे आ जाना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो है मैं लिखूंगा डिफ क्लास कंटेनर XXL PT5 TB3 इधर मैं लिख देता हूँ। फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास जाएगा इधर कंटेनर, फिर यहाँ पे लिखता हूँ डिफ क्लास वापस से, और इस बार डिफ क्लास में लिख देंगे टेक्स्ट सेंटर। इधर टेक्स्ट सेंटर लिखा वाओ फेड इन अप ये लिख दिया। फिर उसके बाद जो है डेटा वाओ डिले, फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं 0.1s। H5 यहाँ पे लिखूंगा क्लास जो कि सेक्शन टाइटल, मैं लिखूंगा सेक्शन टाइटल FX सेकेंडरी, और यहाँ पे लिखने के बाद जो सब जो है मैं यहाँ लिखूंगा टेक्स्ट सेंटर। फिर उसके बाद टेक्स्ट प्राइमरी, और फिर उसके बाद जो है FW नॉर्मल। ये लिखने के बाद जो सेंटर में आना है यहाँ लिखते हैं टीम मेंबर्स इस तरह करके, और फिर इसको मैं करता हूँ यहाँ सेव। ये करने के बाद जो सब जो है हमें यहाँ पे H1 डालना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास जो कि हो जाएगी MD5। फिर इसमें मैं लिखता हूँ आवर मास्टर शेफ्स इस तरह करके। फिर उसके बाद डिफ क्लास देनी है इधर, और यहाँ पे लिखूंगा रो G4। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास कॉल MD3, और यहाँ पे लिखना है कॉल MD6। फिर इसमें वाव फेड इन आप लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं डेटा वाव डिले, मैं लिखता हूँ डेटा वाव डिले, और यहाँ लिखते हैं 0.1s। फिर यहाँ डिफ क्लास देनी है जो कि टीम आइटम की जाएगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर लिखने के बाद यहाँ लिखते हैं राउंडेड, और ओवरफ्लो जाएगा जो कि हिडन। फिर उसके बाद जो है हमें आ जाना है नीचे, और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास राउंडेड, और यहाँ लिखते हैं सर्कल ओवरफ्लो, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिडन, और यहाँ हो जाएगा M-4। फिर उसके बाद आ गया नीचे इमेज, सोर्स की जगह अभी पहले क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगी इमेज फ्लूइड। फिर यहाँ लिखते हैं सोर्स, अब यहाँ लिखते हैं इमेज/team1 सेव करना है इसको।
H5 का टैग आ गया, क्लास आ जाएगी MD0 और यहाँ लिखते हैं फुल नेम। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं और टैग जो कि हो जाएगा स्मॉल और यहाँ लिखते हैं डेजिग्नेशन सेव। और फिर उसके बाद जो है अब नीचे है ना यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास डीफ्लेक्स और यहाँ पे लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, यहाँ इसकी जगह पे लिखता हूँ सेंटर MT3 हो जाएगा इधर। और यहाँ लिखते हैं एक है और HF की जगह पे लिखूंगा क्लास जो कि हो जाएगा BTN स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिखूंगा BTN प्राइमरी। और फिर अब जो है यहाँ पे मैं जस्ट आ जाऊँगा आगे MX1, फिर उसके बाद HF और यहाँ पे ये भी एम्प्टी रहेगा। फिर आई टैग डालना है क्लास FA यहाँ लिखेंगे फेसबुक और डैश F इस तरह लिख दिया। फिर उसके बाद जो है हमारे नीचे एट है, यहाँ पे इसको रिमूव करना है, इसकी जगह क्लास आ गई BTN स्क्वायर फिर से और यहाँ पे लिखूंगा BTN प्राइमरी और MX1 लिख देंगे। फिर उसके बाद जो है HF वापस एम्प्टी रहेगा और यहाँ आई टैग देंगे डायरेक्टली और इसमें लिख देंगे FA और यहाँ लिखते हैं ट्विटर। फिर उसके बाद जस्ट आ गया नीचे एट है और अब जो है HF अभी रेडी नहीं है, यहाँ पे क्लास लिख देंगे BTN स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे BTN प्राइमरी और यहाँ पे मैं लिखूंगा इस बार MX1। ये लिखने के बाद जस्ट अब आ जाए आगे और यहाँ आई टैग में क्लास लिखनी है FA डैश और यहाँ लिखते हैं इंस्टाग्राम। सेव करना है इसको और यहाँ पे करने के बाद जस्ट अब जो है हमें आ जाए 3 डिप्स के नीचे जो कि हमने क्रिएट किए और फिर से हमें ये सारी चीज़ें डालनी है। तो अब जो है ये डालने के लिए अब हमें जस्ट इसको कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हमें जस्ट अब बेसिकली हमने 3 डिप्स के बाद आना है, तो अब मैं कॉल MG से लेके यहाँ 3 डिप्स तक इसको करूँगा कॉपी और फिर उसके बाद यहाँ कर देंगे इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ team1 को लेके मैं team2 कर दूंगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। और फिर उसके बाद यहाँ आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे भी जो है आप चेंज कर सकते हो। तो इधर मैं जैसे कर दूंगा एक नाम जो कि LX और फिर यहाँ पे लिख देंगे LX हिल्स या आप कह सकते हैं अलेक्जेंडर, इधर लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी डेजिग्नेशन शेफ, तो इधर लिख देंगे शेफ। फिर सेव करना और इधर में जो है आ जाऊँगा एट द टॉप, या आप कह सकते हैं इधर लिख देते हैं सीनियर शेफ। सेव करना और फिर उसके बाद आ जाना एट द टॉप और यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल शेफ या आप कह सकते हैं मिड शेफ, इस तरह मैं लिख देता हूँ। और इसका जो नाम लिख देंगे वो हम लिख देंगे इस तरह करके, कोई भी नाम आप लिख दें। तो मैं इधर जैसे इसका नाम लिख दूंगा मॉर्गन करके लिख देंगे इस तरह। फिर उसके बाद एट द टॉप आ जाते हैं, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ और डेजिग्नेशन पे डाल देंगे जैसे जूनियर शेफ, तो इधर हम लिख देंगे जूनियर शेफ। सेव करना है फिर रिलोड, तो आप देखेंगे इधर हमें जो है डिफरेंट शो हो चुके हैं। इधर हमें सारे जो टेस्टिमोनियल्स हैं आप कह सकते हैं जो हमारे शेफ्स हैं वो इधर शो हो चुके हैं। फिर उसके बाद जस्ट डायरेक्टली हमें बेसिकली ये करना है कि अब जो हमने डाला है इधर शेफ का सेक्शन, अब इसी के नीचे हमें आके एक और शेफ सेक्शन क्रिएट करना है। तो जस्ट अब मैं इसको यहाँ करूँगा पेस्ट, अब यहाँ पे team3 जैसे हमने डाला था इधर मैं कर दूँगा team4। जैसे इधर आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊँ तो इधर हमने team1 डाला, team2 इधर team3 हो जाएगा और नीचे team4 आ गया। फिर उसके बाद अब जो है जो हमने डाला है team4, फिर अब जो है जस्ट हमें इसको यहाँ तक रहने देना है, मतलब team4 तक जो कि हमने डाला था एंड तक जस्ट हमें इसको वहाँ तक रहने देना है। team4 अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने जो है यहाँ तक पुट किया, तो अब जो है हमने इसको यहाँ तक डाल दिया। तो बेसिकली अब जैसे आपने ये चीज़ कर दी उसके बाद आपको जो है एक मेन चीज़ ये करनी है कि जैसा मैंने आपको बताया हमने जो है यहाँ तक इसको क्रिएट कर लिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इधर तक हमने जो है इसको क्रिएट कर लिया है और ये हमारा जो है टोटली रेडी हो चुका है हमारा जो प्रोजेक्ट है जो कि हमने क्रिएट किया ब्लॉकचेन के थ्रू। तो अगर मैं आपको फुल में इसको करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमें शो हो रहा है, लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ ये देखें कि हमें जो है आखिरी शेफ जो हमने डाला है वो हमें शो नहीं हो रहा, मतलब उसमें हमने कुछ मिस्टेक्स या एरर दिए जिसकी वजह से वो हमें शो नहीं कर रहा। तो मैं इसको जिस तरह करता हूँ, ये आ गई हमारी साइड और फिर उसके बाद जस्ट इसको जो है हमें डायरेक्टली कोडिंग साइड में यहाँ से ट्रिगर कर देना है और फिर आ जाएंगे नीचे, ये आ गए हमारे 3 शेफ्स। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं ये हमने टेस्टिमोनियल मतलब 3-4 डाला है। सेव करके रिलोड करना है, फिर चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं 4 शेफ्स आ चुके हैं। अब टोटली अमेजिंग हमें शो हो रहा है। अगर मैं आपको ऊपर से लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट टोटली रेडी हो चुका है, मतलब एक रेस्टोरेंट एप्लीकेशन जो कि आज हमने क्रिएट किया। आप इसको कह सकते हैं फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जो कि आज हमने क्रिएट की है यूज करते हुए जो है ब्लॉकचेन को। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
तो ये UI फूड एप्लीकेशन थी जो कि हमने Web3 ब्लॉकचेन को यूज करते हुए क्रिएट की है। तो इधर अगर मैं आपको स्टार्ट से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। इसमें ये सारी आपको जो है मेन्यूज मिलेंगे जिसमें हमें हवर इफेक्ट होता है जो कि टोटली अमेजिंग मेन्यूज लगते हैं हमें। फिर आ जाते हैं नीचे तो इधर आपको अबाउट है, इसमें वेलकम टू रेस्टोरेंट का जो है लोगो शो हो जाता है जिसके साथ कुछ पैराग्राफ्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ आपको जो है शो हो जाएगा कि कितने साल का इनका एक्सपीरियंस है, बाकी कितने पॉपुलर शेफ्स आपको इधर मिलेंगे और फिर रीड मोर का बटन जिसके थ्रू आप और भी इनके बारे में जान सकते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे और इनके पॉपुलर फूड आइटम्स आप इधर देख सकते हैं जो कि इधर आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे जो है सारे एक साथ ही और सिर्फ डिफरेंट इमेजेस के साथ मैंने पुट किए, लेकिन टेक्स्ट और पैराग्राफ सेम है और प्राइस भी सेम है, लेकिन आप अब चेंज कर सकते हैं अगर आप ओरिजिनली क्रिएट कर रहे हैं। फिर लंच में आ जाएंगे तो लंच में आपको लंच की आइटम्स हो जाएंगे और फिर डिनर में आ जाएंगे तो डिनर के आइटम्स हो जाएंगे। तो इस तरह जो है हम इसको क्रिएट करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे और इसके बाद आपको जो है बुक अ टेबल का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप एक वीडियो देख के जो है टेबल को बुक कर सकते हैं। या इसमें आपको बताएंगे किस तरह आप टेबल बुक कर सकते हैं। इसमें आपको अपना नाम डालना है, ईमेल डालना है, डेट और टाइम डालना है, किस टाइम आपको टेबल चाहिए, किस डेट को चाहिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आपको सेलेक्ट करने कितने। अगर 3 से ज्यादा है तो आप इधर लिख सकते हैं कि मेरे जो पीपल है वो 3 से ज्यादा है, तो उनके जो है मतलब ज्यादा उसके लिए अरेंजमेंट हो तो वो भी आप इधर मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप कोई स्पेशल रिक्वेस्ट इधर डालना चाह रहे हैं तो आप वो भी इधर डाल सकते हैं और फिर बुक नाउ को दबा के डायरेक्टली वो आपकी टेबल बुक हो जाएगी। फिर आपको जो है ये पेमेंट सेक्शन में रीडायरेक्ट कर देगा, वहाँ पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। फिर आपको मैसेज रिसीव होगा जीमेल वगैरह पे, तो इसी तरह करके ये आपको फिर आपकी जो टेबल है वो बुक करके दे देगा और फिर आप जिस डेट पे जिस टाइम पे जाते हैं उस लोकेशन पे तो आपको वहाँ डेट देखने को मिल जाएगी, मतलब आपकी टेबल जो आपने बुक की होगी। या टीम मेंबर्स शो हो जाएंगे, यहाँ पे आप कुछ पॉपुलर शेफ्स डाल सकते हो जो कि आपको लगता है कि आपके रेस्टोरेंट के बेस्ट शेफ्स हैं। तो इधर मैंने कुछ डाल दिए शेफ, जैसे मैंने इधर अपना नाम डाल दिया सारा मॉर्गन अलेक्जेंडर और इधर आखिर में फुल नेम इधर आ चुका है। तो इधर आप देख सकते हैं इधर मैंने कैटेगरीज भी डाली है, जैसे सीनियर शेफ है, मिड शेफ है, मैंने अपने आप को जूनियर शेफ इसी तरह कह दिया। या सोशल मीडिया आइकन्स भी शो हो जाएंगे जो कि शेफ्स के होंगे, तो वो जो है शेफ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं इधर से। तो इधर आपको ऊपर भी बुक का टेबल का ऑप्शन हो जाएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हमने इधर पुट किया हुआ है जो कि टोटली अमेजिंग लग रहा है। और अगर मैं इसको आपको रिस्पॉन्सिव में शो करूँ तो आप देखेंगे टोटली रिस्पॉन्सिव इधर हमें शो होगा। इधर आप देख सकते हैं टोटली रिस्पॉन्सिव इफेक्ट है ये, जिस भी डिवाइस में आप देखेंगे सब में आपको जो है टोटली रिस्पॉन्सिव दिखेगा, चाहे टैब हो, मोबाइल हो या लैपटॉप हो या पीसी हो, जिसमें भी आप देखें तो आप देख सकते हैं। हमारे इफेक्ट हमें सारे जो है मेन्यूज में शो होगा। बाकी इमेजेस भी, अबाउट अस का सेक्शन, रीड मोर बटन, पॉपुलर आइटम्स जो कि हमारे हैं वो भी इधर आपको शो होंगे। और फिर उसी के साथ साथ हमें जो है इधर हमारे जो बुक टेबल का ऑनलाइन रिजर्वेशन होगी वो भी आपको इधर शो हो जाएगी। फिर इधर आपको जो है स्पेशल रिक्वेस्ट भी इधर शो हो जाएगी, बाकी ईमेल एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हैं आप अपना। और फिर उसके बाद टीम मेंबर्स में अवर मास्टर शेफ्स आपको मिल जाएंगे कौन कौन है। तो इधर आप जैसे ही दबाएंगे तो इनके सोशल मीडिया आइकन आ जाएंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनके सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस तरह जो है आप क्रिएट कर सकते हैं ये अमेजिंग प्रोजेक्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये प्रोजेक्ट जरूर पसंद आया होगा जो कि आज हमने क्रिएट किया है। ये एक अमेजिंग रेस्टोरेंट एप्लीकेशन थी, या आप एक तरह से कह सकते हैं फूड डिलीवरी एप्लीकेशन थी जो कि हमने क्रिएट किया। और ये वेब एप्लीकेशन थी जिसमें हम जो है पीसी के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू भी। तो वेब एप्लीकेशन यही होती है कि जिसको आप पीसी के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है मोबाइल के थ्रू भी। तो मुझे उम्मीद है आपको रेस्टोरेंट एप्लीकेशन या फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जरूर पसंद आई होगी जो कि हमने क्रिएट किया यूज करते हुए Web3 ब्लॉकचेन को। तो अगर वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल में इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।